Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how are you all? I hope Good, ma'am. so I hope Fine, you ma'am. have good. So I hope all of you have completed your classified assignment and submitted it. Yes, ma'am. So anyone have any doubts regarding any of the assignments till now? Ma'am, I am submitted. No, ma'am. Uh, There I'm is no just option for in portal. That's fine. That's totally fine. I have told like those whosoever contacted me regarding the portal, I have told them to upload the assignment on the like via email, because they're like on in the back end we are working on the like the website. So that's why there might be some issues regarding the same. So if you are facing any problems like in the upcoming assignments also, while submitting the assignment on portal, you can just do one thing. You can just email me the assignment and then I will check. Okay. Okay, ma'am. And any other queries regarding any of the like topics we have covered till now? Yes, no, anything, no No, ma'am. responses? No, ma'am. Okay, then if I'll ask you, No, ma'am. will you be able to answer to all my questions if you don't have any queries? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. We will try. okay. Okay, then we will have a quick short Q&A and then we will start with our today's session. Okay, I hope you all are fine with that. Give me 1 second. So, like my first question is the basic one. What is off-page SEO? Any one of you can just raise your hand and answer to my question. Yes, Ria, you can unmute yourself. I mean, off-page SEO is the our keywords and try to make our website on the top ranking of the search console. Can you please be a little louder? I'm not able to hear you properly. In off-page SEO, we try to stuff our keywords on a various platforms by doing backlinking to make our website on a top ranking. Okay. Yes. Anyone else wants to try? Like what is off-page SEO? Off-page SEO focus on the ranking factor that occurs outside of your website, like brand awareness, mention and backlinks. Yes. Okay. So my next question is like why off-page SEO is important? Tanu, you can unmute yourself and answer to my this question. Tanu, are you there? Yes, Jyoti, go ahead. You can unmute yourself.
Yeah, off-page SEO is important because because it impacts your ranking within the search engine. And it also involves improving the perception of your website authority, relevance, and purpose. So it is important because we do all the actions are taken outside and it impacts the ranking of the search engines regarding the results page. That's the reason, like, we can build high quality backlinks and increase the online mentions, social signals, and brand visibility. Yes, so basically off-page SEO helps to show search engines like that our website is very trustworthy and we have some authority as well for our website. And it is like if we have a strong off-page SEO strategy, then we can lead to like better rankings and more traffic, and we can have like improved domain authority. So all of this is the result of our off-page SEOs. Okay. So my next question is like, what are backlinks and why do they matter for off-page SEO? Nagma, are you there? Please unmute yourself. Hello, Yes, Nagma. can you repeat the question, What please? what are backlinks and why do they matter for off-page SEO? Actually, backlinks are used for increase the traffic from other websites. Please, Okay, first just like tell me what are backlinks. backlinks. What are backlinks? मैम जो दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को पॉइंट करती है वो बैकलिंक। Yes, so backlinks are basically the links from one website to another. Okay. Yes, ma'am. Now, my other question is like, why do backlinks matter for off-page SEO? Parminder, you can just unmute yourself and answer to my this question. Ma'am, backlinks usually help a website to increase its visibility or to attract the visitors on your website from another website. Yes. Okay, so my next question is like, how do you get high quality backlinks? Anyone can answer to this question. How do you get high quality backlinks? By checking the DAPA, Yes. And what else? spam score as well. Content. Yes. Sorry. Create high quality content. Yes. And what else? We can do broken link building and we can do guest blogging. Yes, we that can is build. also a good way. Yeah, and we can we can use social proofs also, and we can also collaborate on expert roundups. Like if there are some interviews or industries roundups, we can also participate in that. So that way. Or any PR or media coverage, we can graph release or PR stories with that. Yes. Very good. Very good, all of you. So my next question is, what is the difference between do follow and no follow links? Anyone can answer to this question. Do follow means the tag tells search engine to call that link. And not follow that the search engine link, ignore that link. Sorry, can you please repeat? Do follow link means the search engine to crawl that link also, and not follow, ignore that link. Okay, anyone else wants to try to answer this question?
Shraddha, you can unmute yourself and answer to this question. Do follow links helps to improve SEO, Okay. and no follow link I think doesn't affect SEO, but still it bring traffic. You can think again. Yeah, I can try. This is Jyoti. Do follow link, it passes on the SEO value, or we can just the link juice to improve the ranking. And in no follow backlink, it doesn't pass the SEO value, but can drive a traffic. That's correct. Yes, Ria, you can unmute yourself and answer. Do follow links share their DOPA and no follow links don't share their DOPA. Can you please speak a bit louder? I'm not able to hear you properly. Do follow links share their DAPA and the no follow links don't share their DAPA. Okay. 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 So my next question is, what is social bookmarking in off-page SEO? Like all of you have done this. It is very easy question. Gosha, you can unmute yourself and answer to this question. Some social bookmarking is to promote website now. Sorry. Social bookmarking is used to promote website. Sorry, your voice is breaking. I'm not able to hear you properly. Social bookmarking is to promote websites now. Your Ranking. voice is not clear. Gosha. You can do one thing, you can write it in the chat box. Okay, ma'am. Yes, Jyoti, you can unmute yourself. Yeah, social bookmarking is basically refers to practice where we save and share our website contents on the social bookmarking platforms like Reddit and all and Pinterest. So it's basically saving the practice of saving and what are sharing your website pages or contents on the social bookmarking platforms. Okay. Yes, So to correct. increase the traffic and backlinks and indexes, it gets your discover your index and the content to get faster indexing. Yes, Tanu, you have raised your hand. Please unmute yourself and answer. Social bookmarking is sharing your article, web page, or any resource on different platform of social media, and it also increase our visibility and also the awareness of increase our brand awareness to get more traffic. Okay. So basically, social bookmarking involves like when we submit our content to bookmark in various websites, we have various websites for that, and it can generate the traffic and like potential lead so that we can create backlinks. So yes, that is what social bookmarking is for. Okay, then we will continue with our session now, and we will like you all will learn about Google Search Console, and Ravi sir will guide you through this. So over to you, Ravi sir. Hello, everyone. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So let me share my screen.
मैं आपको गूगल सर्च कंसोल टूल के बारे में बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली आपकी क्या हेल्प करता है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो ऑर्गेनिकली पर्पस पे, एसईओ जो आप कर रहे हो, वहां से आप क्या ट्रैफिक जनरेट कर पा रहे हो, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, आपके जो कीवर्ड्स हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, कितने इंप्रेशंस ऑर्गेनिकली आप जनरेट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको पता चलती हैं। देखिए मैं आपको जैसे टाइप करता हूँ गूगल सर्च कंसोल, फर्स्टली गूगल सर्च कंसोल टूल, स्टार्ट नाउ। तो अभी मैं आपको एक नया सेटअप करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी आईडी जो है चेंज कर लेता हूँ। वैसे ध्यान रहे, जो आप जीमेल आईडी यूज करते हो, जब भी आप किसी एक्टिविटी करो किसी भी वेबसाइट के लिए, तो जो भी जीमेल आईडी आप यूज करोगे वो एक सेम जीमेल आईडी ही यूज करना हर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो आज हम इस वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल सेटअप करके देखेंगे। ऐड प्रॉपर्टी, लुक, अब यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछ रहा है, एक डोमेन, एक आ रहा है आपका यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है। आप इस आइकन को देख करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये आपका एक मेन वेबसाइट है, ठीक है। मतलब ये आपकी एक मेन वेबसाइट है और इसके अंदर कुछ सब पेजेस हैं या सब डोमेन आप कह लीजिए, ठीक है। अगर आप डोमेन का यूज करते हो तो यहाँ पे आपके जितने भी सब डोमेन्स हैं, जितने भी सब हाँ सब डोमेन्स हो गए या सब यूआरएल्स हो गए आपके, उन सब की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके दिखाएगा सिंगली, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल का ही आप परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो या उसके कंसोल्स चेक करना चाहते हो, तो आप जाओगे यूआरएल प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, student.com, और एक है हमारा lms.student.com, ठीक है। तो ये मेरी मेन वेबसाइट है, ठीक है, और ये इसका जो दूसरा वेबसाइट है, यानी ये सब डोमेन पे है, ठीक है। डोमेन, मेन डोमेन हमारा student.com है, ये इसमें सब डोमेन क्रिएट किया गया है। तो अगर मैं, मुझे दोनों ही वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करना है, कंसोल चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डोमेन, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ student.com ये डाल के कंटिन्यू करूंगा। यहाँ से मुझे ये बोलेगा कि जहां से आपने डोमेन परचेज किया है GoDaddy से, वहां से आप जाकर के डीएनए सेटिंग में जाकर के इसको सेटअप करोगे, ठीक है। लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे यूआरएल प्रीफिक्स में, क्योंकि मुझे सिर्फ इस वेबसाइट का, सॉरी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, कंफ्यूज मत होना। ये जो हमारी वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट के लिए मैं सेटअप करूंगा, तो मैं सिर्फ यूआरएल प्रीफिक्स का यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने डाला कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शंस हैं कि मैं इस कोड को कैसे सेटअप कर सकता हूँ। HTML टैग, इस कोड को मुझे अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाना होगा, ठीक है, ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। दूसरा स्टेप है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, अगर आपने गूगल एनालिटिक्स सेटअप किया हुआ है तो आप उसके थ्रू भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में समझेंगे। तीसरा स्टेप है हमारा गूगल टैग मैनेजर। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर सेटअप किया हुआ है तो आप यहाँ पे आके सिंपली, मतलब नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना यहाँ पे यूआरएल डाला, कंटिन्यू किया आपने, तो आपका, अगर आपने सर्च कंसोल सेटअप किया हुआ है सेम जीमेल आईडी से, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम जीमेल आईडी से आपने गूगल टैग मैनेजर को सेटअप किया हुआ है, तो आप इजिली इसको सेटअप कर सकते हो। सिर्फ कंटिन्यू करना है और ये आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। अभी नहीं होगी क्योंकि इसमें जी टैग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा वो डीएनएस वाला जो मैंने आपको पहले बताया।
ठीक है। सो अभी मैं आपको HTML टैग के साथ सेटअप करके बता रहा हूँ इसमें। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो मेरा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ इस कोड को सेटअप करने के दो तरीके हैं। या तो आप थीम की एडिटिंग फाइल में चले जाइए, अपीयरेंस में आपको यहाँ पे आपको मिलेगा थीम फाइल एडिटर। हम कोई भी टैग अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं तो वो उस टैग को हम कहाँ पे लगाते हैं, अपने हेड सेक्शन में, हेडर फाइल में जो हमारी होती है वेबसाइट की। ठीक है, हेडर डॉट PHP के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे इसको मुझे हेड सेक्शन के अंदर लगाना है। अब हेड सेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हेड। ठीक है, और हमारा हेड जो है वो क्लोज होता है इस टैग के साथ। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने बैकस्लैश ऐड कर दिया और हेड लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है अपना कंसोल का टैग ऐड करना है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर दो, अपडेट फाइल। अपडेट फाइल के बाद इसको करना है वेरीफाई। ठीक है, ऑनरशिप आपकी वेरीफाइड हो गई। गो टू प्रॉपर्टी, ये आपका सर्च कंसोल सेटअप हो गया। ठीक है, इसमें एक और तरीका है, अगर आप थीम फाइल एडिटर में ना जा करके प्लगइन के थ्रू आप करना चाहो तो प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो। एक प्लगइन है हेडर फूटर कोड मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐड स्निपेट, ऐड न्यू स्निपेट, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए गूगल सर्च कंसोल। HTML टैग है ये, साइट वाइड, मतलब आपके पूरी वेबसाइट के ऊपर, मतलब जितने पेजेस हैं उस पे वर्क करेगा ये टैग, मतलब शो करेगा। ठीक है, और आपको सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। लोकेशन आपका हेडर, हेडर सेक्शन में ही आपका कोड लगना है। शो ऑन ऑल डिवाइस, स्टेटस एक्टिव, यहाँ पे आपने अपना कोड पेस्ट किया और सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप कर दिया। मैं सेव नहीं करूंगा। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको सेटअप। अब चलते हैं हम अपने कंसोल के ऊपर। अब ये तो हमने कर दिया सेटअप, कैसे सेटअप होना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया गाइस? So Google Search Console is basically check the performance, right? यस, ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं ये जो जितने भी फीचर्स हैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ, एक एक के बारे में। अभी जो सेटअप करना था वो आप लोगों को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. ओके, ये जो टैग है, जो हमने टैग को कॉपी किया था, वो कौन से सेक्शन में जाके लगेगा वेबसाइट के? And हेड सेक्शन। गुड, हेड सेक्शन। यस, ओके। नाउ मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारा प्राइस का सेटअप है। इस पे देखते हैं। सबसे पहले आपका ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपकी बेसिक चीजें होती हैं कि परफॉर्मेंस क्या कर रही है आपकी, इंडेक्सिंग कितने हो रखे हैं, एक्सपीरियंस क्या आपकी वेबसाइट का, यूजर का जो एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट को लेकर के, वो चीजें, एनहेंसमेंट, कुछ अगर कुछ एरर है, कुछ इनवैलिड है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है बेसिकली। यहाँ से स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस में अब आप देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर करने का। आपको परफॉर्मेंस किस चीज की चेक करनी है, वेबसाइट की
या फिर इमेजेस जो आप यूज करते हो, या वीडियोस या न्यूज। ठीक है, वेबसाइट पे अलग अलग तरीके के हम चीजें यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं, है ना। बहुत सारी वेबसाइट होती है हमारी तो हम इमेजेस काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कैनवा ले लीजिए, पिक्सलर ले लीजिए, या ऐसे आप freepik.com वेबसाइट है जो इमेजेस आपको शो करती है। तो उन इमेजेस के लिए आप इमेजेस परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। वीडियोस आप अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो तो वीडियोस का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। न्यूज, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, न्यूज आर्टिकल आप पोस्ट करते हो तो न्यूज आप देख सकते हो, न्यूज की परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं ओवरऑल वेबसाइट का देखूंगा, कंपेयर कर सकते हो इन्हीं को आपस में आप। तो अभी वेबसाइट पे ही देखते हैं। डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसकी डेट की आपको परफॉर्मेंस देखनी है, ये आपको उस डेट की परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कंपेयर करना चाहते हैं इस मंथ या फिर लास्ट मंथ का, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 3 मंथ का हमने डेट चूज किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल क्लिक्स। फर्स्ट है आपका टोटल क्लिक्स, यानी लास्ट 3 मंथ्स में ऑर्गेनिकली हमारे पास टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, 695। इम्प्रेशंस कितने हैं हमारे, और हमारे 2000+ इम्प्रेशंस हैं। यानी कि मतलब यूजर ने क्वेरी की, उसको मेरी वेबसाइट उसको दिखी सर्च रिजल्ट में, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। जितनों ने क्लिक किया वो हमारा काउंट हो गया क्लिक्स में। ठीक है, इसका एवरेज CTR निकल के आ रहा है। हमने इम्प्रेशंस को है क्लिक्स के साथ डिवाइड किया तो हमारा एवरेज CTR जो है वो निकल के आ गया। एवरेज पोजीशन दिखा रहा है कि हमारे जो ओवरऑल कीवर्ड्स हैं वो किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। और ये एक आपको ग्राफ चार्ट बना करके दिखा रहा है यहाँ पे। क्वेरीज, जो यूजर हैं जो क्या क्वेरी करते हैं, जिस क्वेरी की बदौलत आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में शो हो रही है यूजर्स को, वो सारी क्वेरीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब मान लीजिए कि आपने कोई एक वेबसाइट के लिए 3 या 4 कीवर्ड आपने निकाले, उन 3-4 कीवर्ड्स पे आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, उन 3-4 कीवर्ड्स के साथ साथ आपके कुछ कीवर्ड्स और भी हैं जो रैंक कर रहे हैं और जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो यहाँ से आपको वो कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा मेरा ये कीवर्ड भी रैंक कर रहा है और इस पे क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप अपने उन कीवर्ड्स के साथ जोड़ सकते हो। जिन 3-4 कीवर्ड्स पे आप वर्क कर रहे हो, इन कीवर्ड्स को भी आप उनमें जोड़ सकते हो। एक अपनी कीवर्ड लिस्ट आप बना सकते हो, रैंकिंग रिपोर्ट आप एक अच्छी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब आपके ऑर्गेनिक क्लिक्स होंगे जिन कीवर्ड्स पे, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पेजेस, कौन कौन से हमारे URL है, पेज है जो हमारी वेबसाइट के वो सर्च इंजन में शो हो रहे हैं, उन पे क्लिक्स आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कंट्रीज आप देख सकते हैं, किस कंट्रीज से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं। डिवाइसेस, मोबाइल से कितना ट्रैफिक, डेस्कटॉप से कितना और टैबलेट से कितना, ये चीजें आप देख सकते हैं। सर्च अपेयरेंस, सर्च अपेयरेंस में आपके जैसे सर्च अपेयरेंस में क्या, जैसे हम कुछ सर्च करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेटिंग शो हो रही है। ठीक है, सो ये हमारे आपके सर्च अपेयरेंस में शो हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये जैसे इसको बोलते हैं साइट लिंक्स, ये साइट लिंक आ रही हैं, या आपके FAQ आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स आपका सर्च अपेयरेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटेड रिजल्ट दिखा रहा है मेरे को और प्रोडक्ट स्निपेट दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट स्निपेट्स हमारे यही होते हैं। तो इस तरीके के FAQ हो गए, चाहे रेटिंग्स हो गए, साइट लिंक्स हो गए, कोई इमेज या वीडियोस एक्स्ट्रा शो हो रही है हमारी। ठीक है, तो वो सारे हमारे अपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं, सर्च अपीयरेंस में। डेट्स में आप चेक कर सकते हो कि किस डेट को कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट?
सबको क्लियर? Yes, sir. नो सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूआरएल इंस्पेक्शन। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पे नया पेज या नया पेज क्रिएट किया या कोई ब्लॉग या आर्टिकल क्रिएट किया, तो वो तुरंत ही इंडेक्स नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस पेज को लूं, चेक करूं कि ये पेज मेरा इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये इंडेक्स हो रखा है मेरा पेज। अगर कोई पेज मेरा इंडेक्स नहीं हुआ है, तो उस पेज के इंडेक्स कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? गूगल बोट के पास जाएगी। गूगल बोट यानी जो क्रॉलर है हमारे, वो क्रॉलर क्या करेगा, दोबारा मेरी वेबसाइट पे आएगा और उसको रीड करेगा यूआरएल को। रीड करने के बाद अगर वो सारी चीजें सही हैं गूगल बॉट के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे पेज को कर देगा इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि ऑनलाइन उस पेज को शो करने लगेगा, सर्च रिजल्ट में वो शो होने लगेगा पेज। ठीक है, तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट डालते हैं, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, गूगल सर्च गूगल बोट को, बोट्स को। Sir, can you explain this part again? ओके, जैसे कि ये हमारा यूआरएल है, एक पेज है। कोई मैं ऐसा पेज ले लेता हूँ जो मेरा इंडेक्स नहीं है, यहाँ से चलो इसी पेज को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेज है और ये इंडेक्स नहीं है। अब इसकी इंडेक्सिंग चेक करते हैं एक बार। साइट सेमीकोलन और यूआरएल को मैंने पेस्ट किया, सर्च किया, यहाँ पे यूआरएल नहीं आ रहा जैसे लास्ट टाइम आ रहा था, है ना? तो यानी कि ये इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे यूआरएल इंस्पेक्शन से जाकर के। यहाँ पे यूआरएल डाला मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल इज नॉट इन गूगल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको रिक्वेस्ट करना है गूगल बोट को कि वो मेरे इस पेज को आकर के रीड करे और इंडेक्स करे। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे मैंने क्लिक किया। अब ये गूगल बोट के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आप मेरे पेज को आकर के रीड करो दोबारा से और इसको इंडेक्स करो, क्रॉल करो, इंडेक्स करो। ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ये पार्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा कि सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं। यस सर। Yes. ओके, ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट चली गई सर्च कंसोल नहीं, गूगल बोट के पास, क्रॉलर्स के पास। ठीक है, अब वो आकर के मेरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और इंडेक्स करेगा, अगर सारी चीजें उसके हिसाब से परफेक्ट हुई तो। यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड आ गया। जो पेजेस आपके इंडेक्स नहीं हो रखे हैं उनके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक गलती ये मत करना कि मान लीजिए आपने आज रिक्वेस्ट डाली और आप कल उस पेज की इंडेक्सिंग चेक कर रहे हो, आपको इंडेक्सिंग नहीं दिखी, तो आपने दोबारा से उसको इंडेक्स रिक्वेस्ट डाल दी। मतलब बार बार रिक्वेस्टिंग नहीं डालनी है। ठीक है, वीक में आपने एक बार डाल दिया, तुरंत हो गया, वो हो जाता है इंडेक्स। अगर नहीं हुआ है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, उनको आप चेंजेस करें, फिर दोबारा से इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालें। बार बार हर दिन रिक्वेस्ट नहीं डालें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कितने पेजेस आपके इंडेक्स हैं और कितने आपके पेजेस जो है वो नॉन इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 27 पेजेस जो है वो मेरे इंडेक्स्ड हैं और 51 पेजेस नॉट इंडेक्स्ड है। तो मुझे अब क्या करना है, इन पेजेस
जो पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं है वो क्यों नहीं है, उनके रीजंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ पेजेस जो है यहाँ पे मेरे 404 एरर है जिसकी वजह से वो इंडेक्स नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, उन पेजेस को इंडेक्स भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा क्या यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर यूजर क्लिक करता है रिजल्ट देखने के बाद, मान लीजिए मेरा जो रिजल्ट है ये पेज यहाँ पे कहीं शो हो रहा है और यूजर ने क्लिक किया, और यूजर को क्या देखने को मिलेगा, 404 एरर। तो वहां से क्या होगा, मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल मेरी वेबसाइट की रैंकिंग को भी डाउन कर देगा। हेलो। सॉरी गाइस, यस रवि, क्वेश्चन। ओके, तो ये रीजन है हमारे, जो पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं है वो किस वजह से नहीं है। ठीक है, ये पेज मेरे क्रॉल्ड हो चुके हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किया क्रॉलर ने। क्यों नहीं किया, कुछ ना कुछ रीजन होगा। यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल जो है मेरे वो प्रॉपर ठीक से नहीं है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं सिंबल्स यूज किए गए हैं इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे हम खाली स्पेशल कैरेक्टर क्या यूज करते हैं, इसमें सिर्फ हाइफन यूज करते हैं अपने यूआरएल के अंदर ना, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी है। ठीक है, हमारा जो यूआरएल है उसमें अपर केस में है। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से यूआरएल्स को इंडेक्स नहीं किया इसने, रीड कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, यूआरएल्स को मुझे थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाना है। देन उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से रिक्वेस्ट डालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पेजेस में आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हैं, नॉन इंडेक्स हैं। नॉन इंडेक्स हैं तो क्यों नॉन इंडेक्स हैं। देन हमारा साइट मैप। साइट मैप, जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप लगाते हो, साइट मैप बेसिकली क्या हेल्प करता है, ये गूगल बोर्ड को हेल्प करता है कि वो एक बार में सारे पेजेस को, जो वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनको रीड कर ले। हम इसीलिए साइट मैप का यूज करते हैं। ठीक है, साइट मैप हम इसलिए यूज नहीं करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है सारे पेजेस इंडेक्स हो जाएं। साइट मैप हेल्प करता है, साइट मैप हमारी हेल्प नहीं करता, साइट मैप गूगल बोर्ड की हेल्प करता है, उसको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हम साइट मैप का यूज करते हैं। साइट मैप फाइल जब हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप करने के बाद सबमिट कर देना। ठीक है, इससे भी क्या है कि गूगल के बोर्ड को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप फाइल अपडेट कर दी है। आप आकर के रीड करो हमारी वेबसाइट को, आपको रीड करने में हेल्प मिलेगी, आप एक बार में सारे पेजेस को रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिमूवल। ऐसा कोई पेज आपका जो एरर है और आपका पेज वो सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है यूजर को, मुझे यहाँ पे आपका कोई एरर पेज जो है वो शो हो रहा है और आप नहीं चाहते कि वो पेज जो है वो इंडेक्स में दिखे, तो उसकी नॉन इंडेक्सिंग के लिए आप उस यूआरएल को रिमूवल में डाल दोगे। जैसे ये मेरा एक पेज है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से एक रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि ये पेज मेरा नॉन इंडेक्स कर दे। ठीक है, यूआरएल डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एक रिक्वेस्ट चली जाएगी गूगल बोर्ड्स को कि वो इस पेज को नॉन इंडेक्स कर दे।
नेक्स्ट हमारा पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस यानी कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपकी वेबसाइट से वो क्या एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मोबाइल पे भी पुअर रिस्पॉन्स दिख रहा है, डेस्कटॉप पे भी पुअर रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो मुझे क्या इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ये भी मुझे यहाँ से बताएगा। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स, ये हमने जब हम पेज स्पीड इंसाइट के बारे में आज जो मैम ने आपको बताया था तब यहाँ पे आपको मतलब ये बताया गया होगा कोर वेब वाइटल्स के बारे में। इसके पैरामीटर्स थे कुछ, CLS, जैसे CLS था आपका, INP, LCP, याद है आप लोगों को, भूल चुके होंगे, याद है। Yes. यस सर याद है। ओके, FSC L CLS क्या होता लेआउट है? क्यूमुलेटिव फर्स्ट स्क्रीन इम्प्रेशन जो अपीयर CLS, होता है साइट्स पे, और CLS, क्यूमुलेटिव जो ऊपर पैराग्राफ नीचे पैराग्राफ मिडिल में ऐड या पोस्टर आएगा, लेआउट क्यूमुलेटिव। तो ये जो हमारे जो पेज का पुअर एक्सपीरियंस है वो किस रीजन से है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, CLS इशू है, इसको फिक्स करने की जरूरत है। INP, LCP, इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। कितने URLs पे ये एरर है, मतलब इशू है, उन URLs की रिपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल देखा आपने कितना यूजफुल है हमारे लिए। देन HTTP एरर, अगर कोई आपके आपने HTTPS यूज नहीं किया है किसी URL पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर तो उसका भी एरर आपको बता देगा। ऐसा हमारा होता है जब हम SSL सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, और सिक्योरिटी लेयर होती है बेसिकली ये क्या, तो इसको जब हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो हमारी वेबसाइट HTTPS हो जाती है, यानी हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। तो किस पेज पे आपका HTTPS जो है वर्क नहीं कर रहा है वो भी आपको यहाँ से देखने को पता लग जाएगा। जैसे ये URL है, इस पे कुछ इशू है HTTPS का। नेक्स्ट हमारा शॉपिंग टैब लिस्टिंग, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रही हो। यस, सर SSL सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ता है क्या? नहीं, जब आप डोमेन परचेज करते हो तो साथ में ही आपके SSL सर्टिफिकेट मिलता सर मैंने 1 साल पहले एक डोमेन खरीदा था है। और डोमेन के एक्सपायर होने से पहले SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो मेरी जो वेबसाइट थी मैंने वर्डप्रेस से बनाई थी, सॉरी, और तो डोमेन वो सिक्योर नहीं जब बता रहा था जब भी मैं खोल रहा था वेबसाइट। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो ना तब आपको ये SSL मिलता है free। जब आप होस्टिंग परचेज करोगे तब आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है। अगर SSL सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप cPanel से जाकर के उसको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। याद होगा मैंने आप लोग को लास्ट टाइम cPanel एक ओपन करके दिखाया था, हाँ जी उसी सर। cPanel के अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो शॉपिंग टैब लिस्टिंग, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हो, ई कॉमर्स में जब हम एक ऐड रन करते हैं, शॉपिंग ऐड, शॉपिंग ऐड हमारी होती है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी शॉपिंग ऐड है। ठीक है, ये नहीं, ये तो हमारे सर्च रिजल्ट्स हैं, ये हमारी शॉपिंग ऐड है। ठीक है, तो इसमें कुछ फ्री लिस्टिंग्स भी होती हैं, जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये फ्री लिस्टिंग है। ठीक है, तो इन फ्री लिस्टिंग्स पे आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है
वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ऑर्गेनिकली। ये ऑर्गेनिकली रिजल्ट है, ये वाला, ठीक है। और ये आपका स्पॉन्सर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये ऐड है, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो इनके सीपीसी जो चार्ज होगा वो कटेगा, इस पे नहीं कटेगा, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये आपकी फ्री लिस्टिंग क्या रिस्पॉन्स कर रही है, ऑर्गेनिकली क्लिक्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन। अगर आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरह का गूगल कोई पेनल्टी लगाता है कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, तो जो भी पेनल्टी लगाता है गूगल वो आपको यहाँ देखने को मिल जाए। तो अभी हमारे पास कोई भी इश्यूज नहीं है ऐसे। सिक्योरिटी इश्यूज से कोई दिक्कत, अगर मतलब आपकी वेबसाइट हैक होती है, कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है, कुछ इशू आता है सिक्योरिटी पर्पस पे, तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंकिंग, आई होप आपको ये पता होगा एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। यस और नो, पता है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो कितने इंटरनल लिंकिंग्स हैं, कितने एक्सटर्नल लिंकिंग्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जहाँ से आपने कोड वेरिफिकेशन किया था। अगर किसी यूजर को आप एक्सेस देना चाहते हो तो एक्सेस दे सकते हो। एसोसिएशन के अंदर आपको मतलब मिलेगा, यहाँ से आप क्रॉल स्टेट चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कितनी बार क्रॉल किया गया है, ठीक है। जितनी बार भी हमारी वेबसाइट जो है वो क्रॉल होती है, यानी क्रॉलर जब आकर के वेबसाइट को क्रॉल करता है तो हमारी वेबसाइट एक लोड होती है। जैसे कि अगर मैं इस वेबसाइट को, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये वेबसाइट जो मेरी लोड हुई, तो ये जब ये वेबसाइट लोड हुई तो इसके बैकएंड में जितने भी फाइल्स हैं, जो भी मतलब फाइल्स यूज की गई हैं, जावा, सीएसएस, एचटीएमएल, काफी सारी फाइल्स यूज की गई हैं, तो वो सारी फाइल्स क्या हुई, दोबारा से वो लोड हुई, ठीक है। तो वो लोड साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 790 मिलियन, और शायद ये मेगाबाइट की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी बार वो फाइल्स लोड हुई, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपका दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। तो ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं गूगल सर्च कंसोल से। अभी आप लोग को कोई डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Interns, I hope everything is clear to you all. Yes, no, show me your Yep. thumb. Okay. So if you have any queries, you can ask us right now. Okay, then you can leave this meeting now and we will see you in the next session. Bye, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. everyone. Thank you. Bye. Have a nice day.